हाँ पढ़ो। एडमिनिस्ट्रेशन। अरे वो पढ़ रहे, बाद में पढ़ो थोड़ा होने के बाद। हाँ। Administration. It was Chandragupta Maurya, under the guidance of Chanakya, who laid the foundations of an electoral system of administration. Chanakya wrote a book, Arthashastra, in which he describes the principles of politics and the art of administration. Chandragupta's son, Bindusara, retained the same system of Ashoka, and Ashoka made some changes necessitated by the change of heart after the Kalinga War. Ashoka added a new 55th province, Kalinga, in the existing four provinces, with Tosali as its capital. The modern centralized monarchy became a paternal despotism under Ashoka. In one of its edicts, Ashoka says, "All men are my children." Ashoka simplified many rigorous practices related to administration regarding taxation and crop collection. This helped to increase productivity and economic activity of the empire. Ashoka appointed Mahamantras, governors, to look after the welfare of his subjects. Indian administration had two main divisions: civil administration and military administration. Civil administration. The civil administration had two main divisions: the central government and the provisional government. Central government. The Indian government was centralized and was managed by several officials of different ranks. The king was the supreme authority and his throne was hereditary. He was also the supreme judge. Megasthenes, the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya, in his book Indica, and Chanakya in the Arthashastra, tells us about Mauryan administration. Ashoka brought about some changes in the administrative system of Chandragupta Maurya. He appointed Mahamantras, governors, to look after the welfare of his subjects. At the central level, the king was assisted by the Council of Ministers, Mantri Parishad, headed by the Prime Minister. Each minister was responsible for his department. The Council of the Council of Ministers included the chief pujari of the state called Purohit, Senapati, who advised the king on matters related to war and peace. The head treasurer called the Sindhaharta, and Samaharta, the taxational expert. The other important officials were Accountant General, the in charge of agriculture, Superintendent of mines, Superintendent of ports, Controller of commerce, as well as the Superintendent of weights and measures. Provisional government. Ashoka made alterations only in the central government and not in the provincial government. During his grandfather's time, there were four provinces, and after the addition of Kalinga in Ashoka's time, there were five provinces as shown below. Head of the province was called Kumar or Aryaputra. Only the prince was appointed to his position. During Ashoka's time, the Kumar was assisted by a governor, Mahamantri. According to some rock and pillar edicts of Ashoka, besides the Mahamantra, other officers took active part in the administration of the province. Paradishika collected taxes. Rajuka performed the functions of modern-day Tehsildar or revenue officer. The Yukta was the treasurer. ओके वेट अर्जुन, फेयर, थैंक यू डियर। तो देखो अभी आगे बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी सिविल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बहुत सारा चीज इसमें है अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया था। तो नाउ इट वाज चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य हु लीड द फाउंडेशन। ऑब्वियसली वी नो वो दोनों ने वो किसको हराया वो लोग ने। हाँ धंधा नहीं, कौन सी डायनेस्टी को हराया। कुछ भी भूल गए। आज कल का ही चैप्टर है ये। कौन सी उन्होंने किस मतलब वो दोनों को किसने निकाल दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य को।
कौन सी डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी। हाँ, नंदा। नंदा डायनेस्टी। तो नंदा वाले को मैंने वही बोला। हाँ ठीक है। तो नंदा वाले ने मतलब ये दोनों को निकाला था और उसने फिर बाद में आगे लीड किया, दोनों ने मिलके उसको हरा के। हु लेड द फाउंडेशन, मतलब आपको बोले कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, तो आपको ये दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। एनीवे, तो एलोबरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर वो दोनों ने ही एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया, और स्पेशली मोर और लेस ज्यादा चाणक्य का दिमाग। ठीक है, चाणक्य रोट बुक अर्थशास्त्र, उन्होंने बुक ही लिख दिया पूरा, जैसे अपना कैसा बंधारण हमारा एक बुक रहता है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है पूरा अर्थशास्त्र, अभी भी पढ़ रहे हम। ओके, इन विच he describe the principle of politics, क्या है पॉलिटिक्स कैसे करना है, एंड द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है सब चीज, बराबर है। कौन ऊपर रहेगा, कौन क्या हैंडल करेगा, किसको कितना पावर देना है। चंद्रगुप्त का सन बिंदुसारा रिटेन द सेम सिस्टम, तो उसके बाद उसका सन आया तो उसने भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, एज इट इज वही उसके फादर का जो सिस्टम था वही उन्होंने फॉलो किया। एंड अशोका मेड, लेकिन आफ्टरवर्ड अशोका आया तो अशोका ने थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस किया। तो सेंट्रल सिस्टम में जो था सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जैसे अपना मैंने आपको बोला पहले पुलिस फोर्स है, रेलवे है, वो सेंट्रल के अंडर आता है। ओके, दिल्ली से सब डिसीजन आएगा। सैलरी आपका, इफ यू आर ए रेलवे एम्प्लॉय, आपकी सैलरी दिल्ली से आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देगा। और अगर आप स्टेट में हो, समझो बीएमसी में हो, ओके, लोकल स्टेट के अंडर आप आते हो, तो आपको वो सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त सन बिंदुसारा रिटेन द सेम सिस्टम, अशोका मेड सम चेंजेस नेसेसिएटेड बाय द चेंज ऑफ हार्ट। तो उन्होंने क्या किया कि देखो ये सब था पहले जो वॉर है, ओके, वॉर जीतना है आपको, मतलब आप वो हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर था, ढांचा था। लेकिन अभी अशोका का तो हृदय परिवर्तन हो गया आफ्टर कलिंगा, देन व्हाट हैपन, तो उन्होंने फिर वो चेंजेस लाना पड़ा, मतलब मिलिट्री में कम हो गया, ओके, देन आपको वेलफेयर में ज्यादा आपको एक्सपोज करना है, तो वो हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया। तो क्या किया, अशोका एडेड न्यू फिफ्थ प्रोविंस, तो उन्होंने क्या किया, अभी तक 4 प्रोविंस था, तो एक चौथा 5वां प्रोविंस ऐड कर दिया जिसका नाम था कलिंगा, ऑब्वियसली वो लास्ट वाला जहाँ पे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जीते हो कलिंगा वॉर। एंड इन एग्जिस्टिंग 4 प्रोविजन, जो 4 थे उसमें से एक ऐड किया, और ये कलिंगा का कैपिटल बना दिया तोसाली। ओके, तोसाली नाम का कैपिटल जो था वहां पे उन्होंने बोल दिया कि ये अभी तोसाली इसका कैपिटल है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके सब, मगधा उसका पाटलिपुत्र है, ठीक है, गंधारा उसका है तक्षशिला, जो हमने बोला यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा, अवंती, ओके, ईस्टर्न प्रोविंस, उसका कैपिटल है उज्जैन। कहाँ पे आया ये उज्जैन? एमपी शायद। एमपी, ओके, और एमपी। और अवंती, अगर आपको पता रहेगा अवंती क्या है मालूम है? अवंतिका करके है ना, आपके बॉम्बे से, मतलब हमारे बॉम्बे से एक ट्रेन जाता है, उसका नाम है अवंतिका एक्सप्रेस। ओके, दैट विल रीच यू टू उज्जैन, इंदौर, वहां पे आपको लेके जाता है। रात का 8 बजे का ट्रेन है, सुबह 7 बजे पहुंचाएगा। आई हैव ट्रैवल्ड हियर, ओके, तो उसका नाम ही अवंतिका एक्सप्रेस रखा है, देखो, सोचो आप। देन साउदर्न प्रोविंस, उसका नाम है स्वर्णा नगरी, स्वर्ण नगरी मतलब बेसिकली सुवर्ण का नगर। हाँ, स्वर्ण, हाँ स्वर्ण नगरी, हाँ जो भी है, चलो ना। देन कलिंगा तोसाली जो लास्ट में बना 5वां वाला, ठीक है। द मॉडर्न सेंट्रलाइज मोनार्की बिकम अ पैटर्नल डिपोटिज्म अंडर अशोका। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब वो ऐसा बोला है, देखो पैटर्नल का मतलब होता है जैसे फादर ने फॉलो किया वो बच्चा करेगा, उसका बच्चा पैटर्न फॉलो करते हैं, ऊपर का मतलब जो ऊपर किया है वही नीचे भी फॉलो होगा, वैसा करके उन्होंने अशोका ने फॉलो किया था मोनार्की, बरोबर है। इन वन ऑफ हिज एडिक्ट्स अशोका से ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, मतलब सभी मेरे सब्जेक्ट, आगे देखो आपने पढ़ा रहेगा वर्ड यूज होता था, ऑल सब्जेक्ट मतलब उसकी प्रजा बेसिकली, तो वो सब उसके बच्चे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। अशोका सिंप्लीफाइड मैनी रेगुलर्स प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी रेगुलर्स मतलब डिफिकल्ट, जो बहुत कॉम्प्लेक्स था उसको उसने आसान कर दिया, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड क्रॉप कलेक्शन, देखो सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या था वो टाइम पे, क्रॉप से जो फार्मर के ऊपर से पैसा आता था मोर और लेस, वो टाइम पे ज्यादा ट्रेडिंग का कम था, अभी ट्रेडिंग बढ़ गया, बरोबर है। तो
वो ज्यादा था तो उनको पैसा वहां से आता था, तो उनको ज्यादा फोकस वो सेक्शन में करना है, वो डिपार्टमेंट में करना है. दिस हेल्प इन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द एम्पायर. तो उन्होंने क्या किया, इजी कर दिया सब टैक्सेशन सिस्टम, तो उससे क्या होगा, और प्रोडक्शन बढ़ने लगा, आसान कर दिया, मतलब उसको टैक्स कलेक्शन इजी कर लिया, कम कर दिया प्रोबेबली, तो आपका बढ़ जाता है प्रोडक्टिविटी. सर हाँ, सर डेस्पोटिज्म क्या होता है? डेस्पोटिज्म का मतलब है तानाशाही. ये जो है ना डेस्पोटिज्म, मतलब द मौर्यन सेंट्रलाइज मोनार्की बिकम पैटर्नल. और तानाशाही मतलब एक्चुअली ऐसा हो गया कि एक जो सी मोरलेस अभी यहाँ पे जो राजा बोलेगा वही हो गया, मेरे हिसाब से वो है, मतलब ही इज द किंग. जो मेन डिसीजन है ना वो किंग ही लेने वाला है. अगर आप देखो आगे आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब हर एक पावर, मेन पावर है ना किंग के पास है. ओके, उसको पावर उसने ज्यादा किसी को मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो अपने फैमिली के अंदर ही रखा है. ठीक है, उसको बोलेंगे डिपोटिज्म. और पैटर्नल मतलब पहले भी ऐसा ही था, मौर्य भी ऐसा किया, बिंदुसारा भी किया और अशोका भी ऐसा ही किया, ऐसा करके बोला है. ठीक है, देन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है टू मेन डिवीजन, सिविल. ओके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं ये सब चीज. तो बाद में अकबर ने बहुत सारा चेंजेस किया, अभी तो हमारा जो पूरा है सिस्टम वो अकबर वाला है. द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है टू मेन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. तो प्रोविंशियल में मतलब प्रांत वाला, सेंट्रल मतलब मेन, जैसे दिल्ली है समझ लो, और महाराष्ट्र है. सेंट्रल मतलब दिल्ली, दिल्ली से सब डिसीजन लेगा. अभी आपका बुलेट ट्रेन बन रहा है, ओके, तो वहाँ पैसा कहाँ से आया, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, वो सब हैंडल करेगा, उसका डिसीजन होगा, मतलब मोदी की ऑफिस से सब ये सब मैनेज होगा. ओके, उसको स्टेट से कोई लेना देना नहीं है. पावर है, मतलब दे हैव अ मोर पावर. सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो, मौर्यन गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज एंड वाज मैनेज बाय सेवरल ऑफिसर ऑफ डिफरेंट रैंक. तो अलग अलग रैंक दे दिया, ओके, पोजीशन दे दी, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट फॉलो होती थी, मैनेज होती थी. किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी. देखो ये आया यहाँ पे, ओके, तो किंग ही मेन है भाई. देखो बाकी कोई पावर किसके पास ज्यादा कम है, किंग बोलेगा तो ही आगे गाड़ी बढ़ेगा. एंड हिज थ्रोन वाज हेरिडिटरी, मतलब वो मरेगा तो, प्रेसिडेंट जैसा. हाँ प्रेसिडेंट जैसा. ठीक है, तो उसने ऐसा नहीं कर दिया, आज चल भाई दीप एक काम कर, अभी आज से के बाद तू संभालना और तू डिसीजन ले लेना. ऐसा नहीं, संभालना आपको है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना है, देन यू हैव टू कम टू मी. पूछना है मुझे कि सर इसका क्या करना है, अभी इसको ये टैक्स बढ़ाऊं, कम करूं कि नहीं. ओके, ये सब वॉट एवर मे बी, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो पावर एम्प्लॉय को कम देते थे वो लोग. और थ्रोन हेरिडिटी है, मतलब और मर जाएगा तो उसका लड़का ऐसा बनेगा, बराबर, और कोई दूसरा नहीं बन सकता है राजा. ही वॉज ऑल्सो ए सुप्रीम जज, और जज भी है, मतलब उसको जजमेंट वो देगा, कुछ भी इशू हुआ देन ही विल बी गोइंग टू डिसाइड. देखो अभी भी पावर उसके पास ही है. हाँ, सर तो फिर मतलब उसका जो राजा होता है उसका बेटा ही राजा बनता है, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना? हाँ तो वो तो पर वो हरा के वैसा देखो, उसने तो क्या किया है, हरा दिया ना. मतलब सर उसके पास ना आर्मी किधर से आया, वो तो मतलब उसने बनाया, वो डेवलप किया उसने, बाद में उसने गैदर किया. वो है कुछ स्टोरी, उसका भी है स्टोरी. वो किधर है ना, जहाँ पे उसको निकाल दिया ना, फिर वो बाहर के, वो देश के बाहर जाके है ना, वो एरिया से बाहर जाके वो उसने बहुत साल बिताया है उसके अंदर, मतलब बॉर्डर के ऊपर. ये स्पेंड लॉट ऑफ इयर्स, मेनी इयर्स, एंड धीरे धीरे वो आर्मी डेवलप किया. ऐसा कुछ है स्टोरी, गूगल कर लेना एक बार, यूट्यूब में देख लेना कि कैसे उसने, मतलब हाउ ही हैज कम बैक. अभी वो अपने पास उसका डेटा होना चाहिए, जितना डेटा होगा वो अपने को पता चलेगा. तो अभी देखो वो तो सिंपल बात है, सर लॉजिक है, मैं रूल कर रहा हूँ, ओके. अभी जब तक मैं रूल कर रहा हूँ, अभी मेरे मरने के बाद मेरा लड़का, अगेन ही इज रूलिंग. बट इनकेस ऐसा हुआ कि मेरा लड़का रूल कर रहा है, लेकिन आपने आके चढ़ाई किया और आपने जीत लिया, तो ऑब्वियसली फिर तो आप ही किंग हो गए ना. बट अगेन आपके केस में क्या होगा, आपके बाद आपका लड़का किंग बनेगा. ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना. आज कौन करेगा, कौन अपनी गद्दी पावर दूसरे को देगा फैमिली के बाहर, लॉजिक है ना. अंटिल कोई उसको चीटिंग करके उसकी गादी छीन लेगा तो अलग बात है, वो तो अभी आपके ऊपर है, वही तो मेन है भाई. हाँ, सर वो पता चल गया चंद्रगुप्त ने क्यों, तो कैसे कैसे किया,
सर उसने ना पहले तो एक मतलब छोटा सा आर्मी बनाया। हाँ फिर वो है ना, वो जो विलेजेस रहते हैं ना छोटे छोटे, हाँ उसको उसने कैप्चर किया था। हाँ और फिर धीरे धीरे करके उसने थोड़ा ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। हाँ और फिर वो लोग ने ना क्या कहते हैं, नंदा का जो कैपिटल है ना, हाँ पाटलिपुत्रा, हाँ उधर उधर जाके उसकी आर्मी लेके गया था और डायरेक्ट किंग पर अटैक कर दिया था। तो फिर खत्म सब। बरोबर, तुम्हें बोला ना इसके लिए। सो उसने अटैक किया तो ऑब्वियसली देन जीता ना उसने, तो बैठेगा गादी पे। देन ही वाज आल्सो अ सुप्रीम जज। मेगास्थनीस द ग्रीक एम्बेसडर जिसने ये सब बुक लिखा था, एट द कोर्ट ऑफ चाणक चंद्रगुप्त मौर्य, कोर्ट में था वो, ठीक है, उसकी सभा में था। इन इज बुक इंडिका, उन्होंने बुक लिखा था इंडिका, ठीक है, याद रखना। मेगास्थनीस के ने इंडिका लिखा था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो वो दोनों बुक के अंदर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल में दिया हुआ है, बुक के अंदर मिल गया अपने को इजीली। तो अच्छा है, अपने को समझने को इजी पड़ा। अशोका बॉट अबाउट सम चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोका ने अपने दादा का जो सिस्टम था उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया। उसने क्या किया, अपॉइंटेड महामंत्रास, जो हम महामंत्री बोलते हैं अभी आज की तारीख में, महामंत्री, तो महामंत्रा, गवर्नर, टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, ओके, उसके लोगों को देखने के लिए गवर्नर, आज की तारीख में भी है अपने पोजीशन गवर्नर, ठीक है। एट द सेंट्रल लेवल द किंग वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसके नीचे सब मिनिस्टर है, आज भी है। मंत्री परिषद, देखो है अभी भी मंत्री परिषद इंडिया में, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा, बट सेम टाइम किंग का ही डिसीजन रहेगा, ओके। बाकी सब बहुत सारी चीज देखनी रहती है, अभी किंग कितना देखेगा। ईच मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट है, बरोबर है। आर्मी है भाई आपका, सिविल है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, देयर आर सो मेनी थिंग। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड द चीफ पुजारी, ओके, काउंसिल ऑफ एक चीफ पुजारी रहेगा ऑफ द स्टेट कॉल्ड द पुरोहित, तो एक वापिस यहाँ पे क्रिस प्रेस जैसा क्या बोलते हैं, पंडित, पुरोहित मतलब पंडित। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड, तो ये मिनिस्टर में पुजारी की भी पोजीशन है, ओके, उसको बोलेंगे पुरोहित, पूजा पाठ कराने का अल्टीमेटली। सेनापति हु एडवाइज द किंग ऑन मैटर रिलेटेड टू वॉर एंड पीस, तो सेनापति अभी भी अपने को पता है, ओके, सेनापति क्या करेगा, जो भी वॉर और पीस के लिए, वॉर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी आर्मी अपने को रिक्वायर्ड है, कम करे बढ़ाए, क्या करना है, तो पैसे का मामला है, सैलरी देना है। द हेड ट्रेजरर कॉल्ड द सनी सन्निधता, ओके, हेड ट्रेजरर मतलब पैसे का लेन देन, जो पैसे का मामला है, जो पैसा देना है उसको, उसके हाथ में पैसा रहेगा, ओके, किसको सैलरी देना है, यू हैव टू गो टू ट्रेजरर, संभालता है ट्रेजरर। आज की तारीख में भी ट्रेजरर है, मतलब बैंक के अंदर, तो ट्रेजरर क्या करेगा उसको, चार्टेड अकाउंटेंट बोल सकते हो उसको। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोल सकते, नहीं। देखो ट्रेजरर की पोजीशन कहाँ पे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, सोसाइटी में, अगर आपकी सोसाइटी है ना, तो उसके अंदर एक ट्रेजरर की पोजीशन रहेगी। तो ट्रेजरर क्या करेगा, देखो आपका सेक्रेटरी है आपकी सोसाइटी में, लेट्स से एक है ट्रेजरर, वो पोजीशन कंपलसरी है, और एक तीसरा है, समझो वॉट, तो 4-5 पोजीशन है, मतलब हेल्पिंग कमिटी है 8-10 लोगों की। नाउ आप लोग ने बोला कि भाई यहाँ पे है ना गार्डन बनाना है, तो गार्डन के लिए क्या करोगे, गार्डन बनाने के लिए पहले कोटेशन लगेगा कि गार्डन बनाने का कितना खर्चा है, तो ऐसा एक जन का नहीं चलता है, 4 लोगों का कोटेशन लगेगा। तो मैंने बोला कि मैं 1 लाख में बना के दूंगा, और आपने बोला मैं 1,10,000 में बना के दूंगा, फिर मुझे मेरा कोटेशन बरोबर है, और मेरी मतलब मेरी गुडविल देखेंगे, मैं अच्छा काम करता हूँ कि नहीं, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे। देन व्हाट हैपन, सेक्रेटरी क्या बोलेगा कि समझो जिमित है ट्रेजरर, तो जिमित के पास जाना पड़ेगा सबको, एंड जिमित विल रिलीज द फंड, वो पैसा साइन वो देगा कि हाँ भाई 1 लाख का चेक, उसमें 2-3 लोगों का साइन लगेगा सोसाइटी के, बस स्टिल ही विल द फाइनल अथॉरिटी टू रिलीज द फंड, दैट इज अ ट्रेजरर, याद रखो, ठीक है। देन एंड समर्था, समाहर्ता, ओके, तो याद रखो सनिद्धता, समाहर्ता, ये दोनों नाम रखो, ट्रेजरर को ये दोनों नाम से बुलाते थे। समाहर्ता द, इसको टैक्सेशन एक्सपर्ट, देखो ये आप बोल रहे हो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको ये बोल सकते हैं समाहर्ता, टैक्सेशन एक्सपर्ट, टैक्स के एक्सपर्ट है वो, तो कितना करना है, अपने को कितना रिक्वायरमेंट है, कम है,
तिजोरी खाली हो रही है राज्य की, ओके, 1 साल के बाद हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो टैक्स बढ़ा दो, खर्चे कम कर दो, वो सब कौन देखेगा? टैक्सेशन एक्सपर्ट, ओके, टैक्स कितना लगाना है, क्या ये सब टीम रहता है। द अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर वेर अकाउंटेंट जनरल, वन इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर का इंचार्ज, एग्रीकल्चर में से कितना रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, माइंस भी थी तभी, ओके, माइंस में से सब निकाल रहे थे वो, तो उसका भी एक है। सुपरिटेंडेंट मतलब एक पोजीशन है, ओके, पावरफुल। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट, बराबर, पोर्ट के अंदर सामान आ रहा है, ट्रेड हो रहा है। कंट्रोल ऑफ कॉमर्स एज वेल एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर, तो वेट एंड मेजर का सुपरिटेंडेंट, वेट एंड मेजर मतलब वो वजन रहता है ना, वजन करने का, मेजरमेंट, तो उसका भी एक सुपरिटेंडेंट है, मतलब वो बरोबर, आई थिंक वो जब भी, ये कहाँ पे यूज होता होगा, आई डोंट नो, अभी फैक्ट्री, अभी तो मुझे पता, ये वेट एंड मेजर अभी मुझे पता है, अभी अभी सर वेट एंड मेजर मेरे को पता है। हाँ क्या सर तभी वो वेट एंड मेजर के लिए तभी चीटिंग वो सब होता था ना। हाँ वो सब बराबर, थे ना। करेक्ट। तो अभी आपको जहाँ बराबर बोला कि अगर मैं किधर गया और मेरा 2 किलो की जगह मुझे 1.5 किलो दिया और वेट में मिस्टेक किया हुआ है, तो ये लोग जवाबदार है, देखना पड़ेगा उनको कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, करेक्ट। ठीक है, आज की तारीख में भी वैसा है, आज भी ये पोजीशन है वेट एंड मेजर का। जो अभी आपके कैसे पता चलता है मालूम है, ये वेट एंड मेजर का, कि जब भी आप किराने की शॉप में जाते हो तो डिजिटल आता है ना, जब भी आप रखोगे कुछ सामान तो न्यूमेरिकल लिख के आता है, मुझे 1 kg 1.5 kg ऐसा लिख के आता है, ओके। पहले वो वजन वाला सिस्टम नहीं है, अभी सब डिजिटल हो गया, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन होता है, वो भी चीटिंग होता है। अगर उसमें मैं ऐसा सेटिंग किया कि मैं 1 किलो का सामान 900 ग्राम रखूंगा ना, तो मुझे उसमें नंबर में लिख के आएगा 1 kg, 100 ग्राम का चीटिंग कर सकते हैं आप, आई नो, जब पर्सन वो मतलब मेरा एक था पहचान वाला, तो वो ये सब दिखता था, मतलब ही हैज टू क्रॉस चेक, वेरीफाई करने का ये सब। तो ऐसा अभी मैं 100 ग्राम की तो बात छोड़ो, जब भी बहुत सारी चीज जब भी आप इंपोर्ट करते हो, ओके, 100 किलो क्या बोलते हैं, 100 टन, हाँ 100 किलो कांदा, कांदा नहीं थे, कांदा में तो ठीक है, बट ये जो अपना ज्वार, कॉपर, बाजरा, कॉपर, बाद में आयरन, ये सब बहुत हैवी मेटल है, तो वो पूरा बड़ा ट्रक का ट्रक आता है, तो वहां पे वो लोग थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, रन्स टू लाख रुपीज, बहुत लाखों रुपए में वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो वो सब देखना पड़ता है, उसके लिए ये जवाबदार है, मतलब ये टू वेरीफाई कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना। नाउ प्रोविंशियल मतलब प्रांत, इंटरनल, नीचे आ गए हम लोग, पहले सेंट्रल में थे, तो सेंट्रल में इतनी सारी चीज देख रहे थे, याद रखना इतना सारी पोजीशन सेंट्रल के अंडर है, ठीक है। देन प्रोविंशियल, स्टेट के नीचे लेवल पे, अशोका मेड ऑल्टरेशन ओनली इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये सेंट्रल में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जो उसके दादा का सिस्टम था, बट प्रोविंशियल में उन्होंने कुछ टच नहीं किया, एज इट इज रखा, खाली एक चीज किया, वो एक प्रोविंस ऐड किया उन्होंने, ओके। ड्यूरिंग हिज ग्रैंडफादर टाइम देयर वर 4, दो एक कलिंगा ऐड किया और तोसाली कैपिटल था उसका, याद रख लेना। नाउ उन्होंने इसमें क्या था, हेड ऑफ द प्रोविंस वॉल कॉल्ड, तो प्रोविंस का जो हेड है वो उसको बोलते थे कुमार, ओके, और आर्यपुत्र, और ये कौन बन सकता था, ओनली प्रिंस, उसका लड़का, फैमिली वाला ही बंदा ये बन सकता था, ओके। ही विल बी द, अगेन पावर उसको अपनी फैमिली में ही रखा, किसी और को नहीं दिया पावर, ओके, थर्ड पर्सन को नहीं दिया। were appointed to this position during Ashoka's time, the Kumar was assisted by governor, तो उनको हेल्प करने के लिए कौन रहता था, गवर्नर, अगेन उसको बोलते महामंत्रा। अकॉर्डिंग टू सम रॉक एंड पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका डिसाइड द महामंत्रा, मतलब महामंत्रा से एक और गवर्नर और भी कोई ऑफिसर रहते थे जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन के काम में हेल्प करते थे। उसमें एक है प्रदेशिका, प्रदेश, प्रदेश मतलब जगह, प्रदेश, मध्य प्रदेश बोलते हैं ना, प्रदेश कलेक्टेड द टैक्सेस, प्रदेशिका क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा। देन रुजुका करके एक पोजीशन थी, वो क्या करता था, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मॉडर्न डे तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर, आज की तारीख में हम उसको बोलते हैं तहसीलदार, ओके। अगर आप देखो तहसीलदार की ड्यूटी, ओके, ड्यूटी ऑफ तहसीलदार मैंने लिखा हुआ है, देखो क्या होता है, कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है। देन प्रोवाइड कास्ट सर्टिफिकेट, बराबर, अभी आप
जैसे बोले SC है, कोई OBC है, कोई ओपन कैटेगरी है, कोई माइनॉरिटी में आता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, आप बोलोगे उससे नहीं होता है, तो वो तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो वो देगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन चेक वर्क ऑफ पटवारी। क्योंकि पटवारी का वो काम चेक करना है। पटवारी मतलब ये जो क्रॉप्स है ना, जो उसका रिकॉर्ड रखता है। गांव में एक गांव है समझो, उसमें से टैक्स लेना है आपको, ठीक है, तो कितना टैक्स लेना, क्या लेना, तो क्रॉप्स के ऊपर है, कितना क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ, बराबर। ऐसा बोला है, राजा ने बोला है कि 1/3 ऑफ क्रॉप्स है ना आपको, हमको दे देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो वो बंदा बोलेगा कि नहीं, मेरा तो है ना, ये बार फसल अच्छा नहीं हुआ, खाली 100 किलो ही अनाज हुआ है, तो वेरीफाई कौन करेगा, तो वो पटवारी करता है। तो ये क्या करेगा, तहसीलदार जो पटवारी है उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट काम है, अल्टीमेटली टैक्स के रिलेटेड ही काम है। तो ये पोजीशन याद रख लेना, प्रदेशी का कलेक्ट टैक्स, रुजू का एक्ट एज ए तहसीलदार, यू कैन से रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू मतलब पैसा। देन द युक्ता वॉज ए ट्रेजरर, देखो अगेन वापिस आ गया यहाँ पे, ट्रेजरर ऑफ प्रोविंस। ऊपर हमने देखा था वो सेंट्रल ट्रेजरर था, ये प्रोविंस का ट्रेजरर, पैसे का सब हिसाब किताब वो देखेगा, सब पैसा इसके पास आएगा अल्टीमेटली, युक्ता के पास। देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोविंस, अच्छा यहाँ से बाकी है ना, ओके भाई, अर्जुन भाई। हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, सर आप डायरेक्ट ही करा दो ना ऐसा, मतलब नहीं बोलो ना, 2 बार बायहट हो जाएगा ना, उतना क्या फर्क पड़ता है, करो ना, 5 मिनट लगता है, करो, याद रह जाएगा भाई। हाँ, District administration. The provinces were divided into districts called Janapadas. Their administration was looked after Pradikshka, Rajuka, and Yukta. Administration of cities. Important cities, the capital of province, as given earlier, had their own administrative system. The head of the city was called Nagaradhyaksha. नगर अध्यक्ष, सुनो, नगर अध्यक्ष, हाँ। According to Megasthenes, the administration of Patliputra, the capital city of Mauryan Empire, was looked after the committee of 30 members. The revenue system. The land revenue was the chief source of income in the Mauryan Empire. It was one sixth of and 1/6 to 1/4 of the produce. Two kinds of taxes, namely Bali and Bhaga, are mentioned in the edicts of Ashoka. Bhaga was lived on agriculture produce and agriculture produce and the cattle of the rare rate of 1/6. According to the historians Vincent Smith and Shahamastri, Bali was the religious tribute. Toll tax was imposed on articles which were brought for sale. Taxes were levied on liquor shops and gambling houses. Some taxes were collected from forests and mines. From the revenue collected, the state provided various facilities like roads, irrigation, hospitals, and met other expenses of the state. The spy system. Chandragupta Maurya had a wide network of spies in his empire. There were spies against the spies on the important matters. More than one agent was asked to collect information. The king was always kept informed of the working of the bureaucracy. Military administration. Chandragupta Maurya maintained a huge army consisting of infantry, cavalry, elephants, and chariots. According to Megasthenes, the Mauryan Empire consisted of 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, and 9,000 war elephants. According to another source, the Mauryans maintained 8,000 chariots. The chief weapon used were bows, arrows, shields, swords, etc. The king was the commander-in-chief of the army. The whole army was under the military commission of the 30 30 members. members। The Mauryas also had a well-laid recruitment policy. The soldiers were paid salary in cash. The Mauryan king had built forts and strategic places for safety and security of the empire. ओके, थैंक यू। वेट वेट, धर्म बाद में कर लेते हैं, धर्म का तो थोड़ा है ना, वो करेंगे।
ओके नाउ कहाँ पे था, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोविंस वेर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, बरोबर। तो पहले प्रोविंस, पहले सेंट्रल आया, फिर प्रोविंस आया, फिर डिस्ट्रिक्ट आया। ओके, प्रांत है, प्रांत के अंदर और डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में भी क्या था, देयर एडमिनिस्ट्रेशन वेर लुक आफ्टर बाय द, वही जो लोग ऊपर थे, प्रदेशिका, राजू का एंड युक्ता, ठीक है, ये तीन लोग ही मैनेज करते थे। वही तीन पोजीशन थी वहां पे भी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज, इंपोर्टेंट सिटी एंड कैपिटल ऑफ प्रोविंस एज गिवन अर्लियर, कौन करता था, हेड बाय द ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द हेड ऑफ द सिटी वाज कॉल्ड, जैसे अभी भी है, नगर अध्यक्ष। ओके, सिटी का हेड उसको बोलेंगे नगर अध्यक्ष। तो हर एक जगह मतलब एक नीचे से ऊपर आता है, जैसे अभी आपके क्लास में एक मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर हुआ, फिर आपके डिवीजन का एक मॉनिटर होगा, ठीक है, फिर एक सब डिवीजन का एक मॉनिटर, मतलब 9th स्टैंडर्ड का एक इंचार्ज होगा, फिर क्या होगा कि डीसी और एससी, हाँ, वो पोजीशन का नाम नहीं पता, आप देखो, फिर वही सिस्टम है अल्टीमेटली, मैं बता रहा हूँ। फिर 8 9 10 है ना सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का कोई एक लीडर रहेगा, बरोबर है। फिर क्या होगा, उसके ऊपर एक कोई रहेगा जो 1 to 10 का लीडर है। फिर उसके ऊपर आपकी टीचर आएगी या हैंडल करने, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल, उसके ऊपर ट्रस्टी, फिर वो एक स्कूल का हुआ। फिर ऐसी जो बॉम्बे में जितनी स्कूल है उसका एक बंदा जो पूरी स्कूल का हैंडल कर रहा है। तो अगर किसी डिसीजन लेना है और किसी को मिलना है, समझो स्टेट के हेड को मिलना है, जैसे वो सिंधे है अपने, तो उनको मिलना है, तो और आप लोग में से कोई नहीं जाने वाला है, वो जो सब स्कूल का हैंडल करता है वो बंदा जाके मिलेगा कि सर वी आर फेसिंग सो एंड सो प्रॉब्लम, वैसा। तो और बाद में सिंधे तो कुछ देने डिसीजन नहीं लेगा, वो मोदी को बोलेगा। तो वैसे पूरा सिस्टम फॉलो होता है, नीचे से ऊपर ऊपर जाता है, ऐसा ट्री के माफिक। तो अकॉर्डिंग टू Megasthenes, the administration of Patliputra, the capital city of Mauryan Empire, okay, was looked after by a committee of 30 members. तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 30 लोग संभालते थे। द रेवेन्यू सिस्टम, पैसा कैसे आता था, ओके, हाउ दे आर गोइंग टू जनरेट द मनी टू रन द सिस्टम। द लैंड रेवेन्यू वाज चीफ सोर्स ऑफ द इनकम। तो मेन में आपको पहले ही बोला, लैंड रेवेन्यू, क्रॉप से आपके जो उगेंगे, अगर अनाज उगेगा उसमें से आपको पैसा मिलने वाला है। इनकम इन मॉडर्न एम्पायर इट वाज 1/6 to 1/4, मतलब आपका जो 100 आपने उगाया है, 60 उगाया, समझो 60 किलो उगा, तो उसका 1/6 मतलब कितना होगा, 1/6 मतलब कितना केजी, समझो 60 केजी आपने क्रॉप प्रोड्यूस किया, कितना होगा 1/6 मैस 10 केजी, ओके, और 1/4 मतलब 15 केजी, तो 10 to 15 केजी उतना आपको देना है, बरोबर है, उतना आपको गवर्नमेंट को दे देना है, वो उनका मेन रेवेन्यू है, ठीक है। प्रोड्यूस देखो, इट वाज 1/6 to 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, पैसा नहीं देना है, ओके, उतना धन आपको अनाज दे देना है, ठीक है। अगर आपने राइस उगाया है, 60 किलो उगा, तो आपको 15 केजी दे देना है गवर्नमेंट को, बराबर। तो ही गवर्नमेंट रन करेगा ना, मेन तो वो है, आपकी सेफ्टी करेगा, आपको जो भी फैसिलिटी देना है वो दे सकेगा, ओके, अदरवाइज क्या फायदा है। 2 काइंड ऑफ टैक्सेस, नेमली बाली, 2 टैक्स थे, याद रखना, बाली एंड भागा, ओके। भागा मतलब एक्चुअली हम बोलते ना, यू नो ना, भागा, भाग बोलते हैं गुजराती में, आप लोग में बोलते हैं भाग, ये मेरे भाग का है, मेरे हिस्से का, भागा मतलब हिस्सा, पार्ट, आर मेंशन इन द एडिक्ट ऑफ अशोका। 2 टैक्स, बाली एंड भागा। भागा वॉज लेविड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखो भागा आ गया ना, सिंपल है, आपने जो प्रोड्यूस किया उससे 1/4 भाग मेरा, मतलब मेरा पार्ट, 1/4 पार्ट मेरा, 60 केजी आपने उगाया, उसका 1/4 पार्ट का मतलब भागा, भाग मेरा मतलब गवर्नमेंट का, राजा का। एंड कैटल एट द रेट ऑफ 1/6, और कैटल है उसका 1/6 उनको देना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द विंसेंट स्मिथ एंड शामस्त्री, क्या है शामशास्त्री, शास्त्री, क्या नाम, इंग्लिश नाम है कि हिंदी नाम, श्यामा शास्त्री, ओके। तो बाली वॉज ए रिलीजियस ट्रिब्यूट, तो बाली करके जो टैक्स था वो क्या था, धर्म के लिए पैसा देने का, मतलब मंदिर बनाना है, ये सब करना है, तो रिलीजियस वर्क के लिए पैसा देने का, वो उसको बोलते थे बाली, ठीक है, डोनेशन बेसिकली है। टोल टैक्स वॉज इम्पोज ऑन आर्टिकल वेयर बॉट फॉर सेल, तो अगर कोई चीज आप बेचने के लिए आ रहे हो तो ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लगाया,
टोल टैक्स आज भी है, पर आज तो हम टोल टैक्स कैसे बोलते हैं, टोल नाका। अगर आपने देखा रहेगा, इफ यू गो बाय रोड तो एक एक जंक्शन आता है, वहां पे आपको 100 रुपया देना है, 120 देना है, जो भी उनका टैक्स रहेगा उसको बोलेंगे टोल टैक्स। वो किसके लिए लेते हैं, जनरली वो रोड बनाते हैं, वो लोग करोड़ों रुपया डालते हैं रोड बनाने के लिए, गवर्नमेंट। तो वो रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द टोल टैक्स। टैक्सेस वेर लिवाइड ऑन लिक्वर शॉप, मतलब जो दारू बेच रहा है उसके ऊपर, गैम्बलिंग हाउसेस उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे वो लोग। सम टैक्सेस वेर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड माइंस, वहां से कुछ कुछ पैसा फॉरेस्ट में से आता था, माइंस में से आता था। फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड द स्टेट प्रोवाइडेड वेरियस फैसिलिटी। तो अगर ये सब पैसा तो आपने ले लिया, ओके, किसी से अनाज लिया, किसी से वो डोनेशन लिया मंदिर का, किसी से आपने जो दारू बेच रहा है उसके पास से टैक्स लिया, बरोबर है, गैम्बलिंग हाउस है वहां से लिया, देन क्या करोगे, तो ये सब से आपको क्या प्रोवाइड करते थे, इरिगेशन, कैनल बनाना है, ओके, नदी में से आपके गांव तक एक कैनल लेके जाना है पानी के लिए, तो कौन वो खर्चा कौन करेगा, खर्चा गवर्नमेंट करेगा, पैसा कहाँ से लाएगा, तो ये सब टैक्स में से। हॉस्पिटल, रोड, वो सब आपको मेट अदर एक्सपेंसेस फॉर द स्टेट, ये सब चीज खर्चा यहाँ पे होता था, ठीक है। देन स्पाई सिस्टम, बहुत होशियार है वो, बरोबर है, तो वो देखता है कि अपने अपने ही डिपार्टमेंट में कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे खिलाफ हो रहा है, ठीक है, पता चलेगा, अगर वो तभी इनिशियली पता चला उसको निकाल देंगे, या तो उसको मार देंगे या जो भी उसको देश निकाल दे देंगे, भाई तू चला जाए इधर से। तो स्पाई सिस्टम, उसका ही बंदा, ओके, अभी आपके क्लास में ही है फॉर एग्जाम्पल, बरोबर है, एक ऐसा कोई स्टूडेंट रहेगा, वो क्या करेगा, स्पाई है, वो क्या करेगा, आपकी जो भी बात है वो टीचर को जाके बता देगा, ओके, वो आपके साथ ही बैठा है, वो बोलेगा भी, टीचर को वो गाली भी देने वाला है, लेकिन एट द एंड क्या होगा, वो जाके टीचर को बोल देगा, तो वो हो गया स्पाई, टीचर का स्पाई बन गया वो, ऐसा। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता था, हैड अ वाइड नेटवर्क, उसने पूरा नेटवर्क बना के हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पे एक डमी अपना बंदा रख दिया है, तो कुछ भी गड़बड़ होगा, कुछ भी गलत होगा, तुरंत बता देगा किंग को। तो किंग के लिए फायदा क्या है, बरोबर है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, देन इट इज अ गुड फॉर एवरीबॉडी रादर, कि ऐसे फालतू लोगों को, मतलब गलत क्वालिटी के पीपल को हम रिकॉग्नाइज कर पाए। तो स्पाइज इन दिस अंपायर, देयर वे स्पाइज against the spies and on important matter more than one agent was asked to collect the information। तो बहुत सारे लोग लगा के रखे थे जानकारी लेके देने का उसको, बस, और कुछ उसका काम नहीं है, बाद में राजा देख लेगा उसको क्या करना है। किंग वॉज ऑलवेज केप्ट इन्फॉर्म ऑफ द वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब यही आपका पॉलिटिक्स, अंदर अंदर जो हो रहा है उसको कुछ भी प्रॉब्लम है ये आके बता देगा स्पाई। पता नहीं चलेगा कौन स्पाई है, बराबर, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी को बोलना है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये स्पाई तो नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली आपको भी रुक जाना पड़ेगा गलत करने से। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, सिंपल है, उसमें कितना था उसके पास, 6 लाख इन्फेंट्री, मतलब आपकी सेना थी 6 लाख, देन 30,000 कैवेलरी मतलब घोड़े, 9,000 एलिफेंट थे। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स मौर्य मेंटेन 8,000 चेहरे, रथ 8,000 रथ, तो अच्छा था, अच्छा खासा बड़ा मेंटेन करके रखा है उसने। द चीफ वेपन क्या यूज होता था, बो एंड एरो, वो टाइम पे तो बो ही थे। देन शील्ड ऐसा प्रोटेक्शन करने के लिए, स्वॉर्ड तलवार। द किंग वॉज द कमांडर इन चीफ, अगेन हियर किंग ही है भाई, देखो कुछ भी डिसीजन लेना है, किंग कमांडर इन चीफ आर्मी के अंदर, पावरफुल पोजीशन आर्मी का उसके पास ही था। द होल आर्मी वॉज अंडर द मिलिट्री कमीशन ऑफ 30 मेंबर, यहाँ पे भी 31 लोगों की टीम थी, वो आर्मी को हैंडल करती थी, देख रेख। द Mauryans also had a well laid recruitment policy, रिक्रूटमेंट मतलब लेने का, ओके, अगर किसी को रिक्रूट करना है, अंदर लेना है आर्मी के अंदर, तो उनको अच्छी खासी टीम थी। आगे देखना, द सोल्जर वेर पेड सैलरी इन कैश, तो जितना भी पैसा देता सैलरी था कैश में देने का, पैसा आया क्योंकि वो कैश में कलेक्ट कर रहे वो लोग, ओके, वो कैश में दे देंगे। Mauryan king had built a forts as strategic place for safety and security for the empire, तो सब बनाया उन्होंने, मतलब दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी, वो सब देखते थे वो लोग, पूरा टीम बना था, इतना पूरा मिलिट्री मेंटेन होता था। और ये जो मेरे हिसाब, हाँ अभी ये मतलब लाइक ये 30,000 कैमरे के मतलब
नंबर दिया है, इन लोगों को कैसे पता चला कि नंबर वो लिखा है, वो बुक में से आया है, वो बुक है ना ये जो दोनों का। हाँ मतलब वहाँ वो बुक है, बट उन्होंने काउंट किया था क्या उस समय और लिखा था? किया रहेगा भाई, देखो क्योंकि देखो काउंट का कारण क्या है, ऑब्वियसली जो अभी मैं सी आई एम ए मिलिट्री जनरल, तो भी मेरे पास तो हर एक डेटा रहेगा ना। टुमारो मुझे किंग बुला के बोलेगा, बुलाएगा, वो पूछेगा भाई अपने पास कितने सोल्जर हैं, कल हमको एक कंट्री पे चढ़ाई करना है, बाजू के राज्य में चढ़ाई करना है, तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा भाई, तो वो बोला निकल जा भाई, तेरे को तो टिप ऑफ टंग होना चाहिए डेटा, तो वो सब डेटा रहेगा। ओके, एकदम एक एक वैल्यू, एक एक नंबर उनको पता रहना चाहिए, और पोजीशन, उसकी स्ट्रेंथ, वो नहीं पता है तो आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, वैसा तो है, उनके नंबर से ही पता रहेगा, बरोबर, और मोरलेस थोड़ा राउंड अबाउट होना चाहिए, बट है एक्यूरेट नंबर दिया है उन्होंने, तो नहीं तो बोलते थे कि हमारे पास जानकारी नहीं है, बट दिया है मतलब था डेटा। तो और ये जो रिक्रूटमेंट है ना, वो भी मेरे हिसाब से है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही करते थे, अगर किसी को लेना है आर्मी के अंदर, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, मतलब हर एक छोटा सा बंदा भी बहुत मायने रखता है, वो दे देता है इन्फॉर्मेशन, देखो अपना हुआ ना इंडिया में वैसा, वो इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री को दे दिया कि भाई हमारे हम लोग ऐसा करने वाले हैं, तो ये लोग जनरली बहुत सारी चीज तो है ना बताते भी नहीं है, खुद की आर्मी को भी नहीं बताते। अभी कल मुझे किसी पे अटैक करना है तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं सुबह 3 बजे सबको बोलूंगा चलो अटैक करने, मतलब नोबडी नोज कि मेरा क्या पोजीशन है, तो वो आर्मी जानता है, आर्मी के मतलब किंग जानेगा, उसके जो मेन चीफ है वो इनको ही पता रहता है, देन नोबडी नोज, सीक्रेट चीज रहेगी, जनरली रिवील नहीं होती है, और रिक्रूटमेंट भी किंग ही करता है इसके अंदर, बराबर, तो ही नोज किसको लेना है। अभी क्या होता है, कोई बंदा है बाकी दूसरे, अभी पाकिस्तान का कोई बंदा यहाँ पे सेटल हो गया, ओके 10 साल से रह रहा है, देन व्हाट हैपन, ही विल डू, ये वो क्या करेगा, वो भर्ती हो जाएगा आर्मी के अंदर, और वो आर्मी में रह के, इंडियन आर्मी में रह के पाकिस्तान का काम करेगा, देन क्या करेंगे फिर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रिक्रूटिंग इन सच ए पोजीशन, नहीं तो मर गए आप, मतलब बैंड बज जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी आपकी कंट्री, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये सब मामले में। ओके नाउ, उसका धर्म, अशोक धर्म क्या करता था, ओके अर्जुन, लास्ट पैराग्राफ, भाई क्या हो गया अर्जुन सिंह, हाँ सर। हाँ, अशोका धम्मा, Ashoka, after the Kalinga War, Ashoka became the people's king. He embraced Buddhism but did not impose it on the subjects. He wanted the subjects to follow such a dharma that may be based on the unifying principles of all majority religions of the world. The Dhamma is the Dhamma as described the Ashoka's edict is not the religion or religious system but a moral law, a common code of conduct or an ethical order which is a common meeting ground of all religions. Principles of Dhamma. Principles of Dhamma. Ashoka's Dhamma has a following salient points: respect for elders and love for children. Respect for elders and love for children. Uh, Ahimsa or non-violence. Ahimsa or non-violence. Good deeds or good karma would give happiness to men and next birth. In the next birth, he taught people to respect all religion. He taught people to respect all religion. He disapproved empty rituals. Impact of Dhamma on Ashoka's imperial policy. Religious unity. Different religions followed. People belonging to different religions followed their emperor's policy of religious tolerance. Moral value. People under the influence of Dhamma started living a moral life. End of crime. The policy of Ahimsa will have a great moral impact on people. Thefts, crimes, and other such activities almost came to an end. Public welfare. With the policy of the conquest of gold having come to the end, Ashoka's Dhamma helped officials to undertake public welfare and public work schemes. This resulted in prosperity and helped people to lead a peaceful life. ओके, तो बहुत इजी है, ऑलरेडी किया हुआ है। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका बिकम पीपल्स किंग, मतलब अभी सबको अच्छा किंग है, सबके लिए अच्छा, सब कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, सब खुशहाल है,
ऐसा ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई देखो सीधा हिसाब है, वॉर बंद किया ना मतलब ऑटोमेटिक आपका पैसा बचने लगा और सबके जेब में पैसा आने लगा। जो अगर वॉर करता था बहुत लोग मर जाते थे, नए लोग रिक्रूट करने का, जो मरे उनकी फैमिली को पैसा देना है वेरी डिफिकल्ट। तो वो सब पैसा क्या होगा, टैक्स से लेना पड़ेगा। टैक्स कहाँ से लोगे, लोगों के जेब से। जो आप 1/4 1/6 ले रहे हो वहां पे आपको आधा लेना पड़ेगा, 50% 60% लेना पड़ेगा टैक्स। तो लोग बेचारे गरीब के गरीब ही रहेंगे। कितना फर्क हो गया। ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म, मतलब वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, गले लगाते थे, अच्छा था मतलब बुद्धिज्म, बट खुद तो लगाते थे बट डिड नॉट इम्पोज, जबरदस्ती थोपा नहीं। सबको नहीं बोला रहे तुमको बुद्धिज्म ही करना पड़ेगा, ओके, जबरदस्ती कर सकते थे वो बट नहीं किया। ओके, सब्जेक्ट प्रजा को उन्होंने बोला नहीं आपको फॉलो जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। ही वांटेड ही सब्जेक्ट टू फॉलो सच धर्मा दैट मे बी बेस्ड ऑन द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजियस। मतलब बोलता है एक टिपिकल चीज होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ओके, वेलफेयर होना चाहिए, वैसा आप फॉलो करो। जरूरी नहीं आप बुद्धा ही करो। मेजर रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो रूल्स है उसको आप फॉलो करो। इफ यू डोंट वांट टू स्पेसिफिक नहीं होना है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट एक कॉमन प्रिंसिपल को आपको गाइड करके ध्यान में रख के लाइफ जीना है। धम्मा इज डिस्क्राइब एज अशोका's edict इज नॉट अ रिलीजियन और रिलीजियस सिस्टम। तो एक ऐसा रिलीजन या एक धर्म जैसा नहीं था उनका, ओके, एक टिपिकल चीज नहीं फॉलो करने का, ऐसा नहीं था उनका, बट द मोरल लॉ। मोरल मतलब एक एथिक, क्या करना है आपको लाइफ अच्छी तरह जीने के लिए, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू लिव द लाइफ, अच्छी तरह लाइफ कैसे जीना है, वो एक आपको फॉलो करना है। नॉट अ स्पेसिफिक रिलीजियस एंड एथिकल ऑर्डर विच अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल रिलीजियस। तो एक हर एक रिलीजियस का एक फाइनल कोड रहता है, फाइनल एक कंक्लूजन रहता है, वो आप देखो, वो अच्छा होना चाहिए और वो आप फॉलो करो। क्या था मेन प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट टू ऑल एल्डर एंड ऑब्वियसली लॉजिक है, एल्डर का रिस्पेक्ट करो, बच्चों को प्यार करो। अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, मारामारी नहीं, वॉर नहीं, पीस रखना है। गुड डीड और गुड कर्म, अच्छा कर्म करने का, वुड गिव हैप्पीनेस टू मैन इन द नेक्स्ट बर्थ। तो उन्होंने बोला है कि भाई तुम अच्छा कर्म करोगे नेक्स्ट जन्म में आपको अच्छा मिलने वाला है डेफिनेटली। वो उनको वो बिलीव कर रहे थे, एकदम स्ट्रांगली बिलीव। ही टॉट पीपल टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, तो अगेन बहुत अच्छी चीज। ही डिसअप्रूव्ड एम्प्टी रिचुअल, वो जब सेक्रीफाइस एंड ऑल वो सब बंद करो, वो जरूरत तो नहीं है, डिसअप्रूव, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या था पॉलिसी, रिलीजियस यूनिटी, पीपल बिलोंगिंग इट्स डिफरेंट रिलीजियस फॉलोड दैट एम्पीरियस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो सबको मालूम है कि हाँ मतलब ये अशोका विल अलाउ टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू और रिलीजियस ही अप्रूव, तो वो करते थे, मतलब ही फॉलो रिलीजियस यूनिटी। ऐसा था कि एक सब भाईचारा, हर एक धर्मों वाले एक ही है, भाईचारे से रहने का। मोरल वैल्यू, पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस धम्मा स्टार्टेड लिविंग ए मोरल। मोरल लाइफ मतलब क्या है, मोरल लाइफ नैतिकता, मतलब ईमानदारी से अच्छी तरह आपको करना है, लाइफ जीना है, मोरल वैल्यू, नैतिकता, ट्रू लाइफ, ओके, चीटिंग नहीं करना है किसी से। एंड ऑफ क्राइम, देखो आ गया यहाँ पे, वो सबका परिणाम यही होता है धीरे धीरे, एंड ऑफ क्राइम, ये सब होने से क्या होगा, क्राइम ही बंद हो जाएंगे। अ पॉलिसी ऑफ अहिंसा डिड हैव अ ग्रेट मोरल इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो ये सबसे पॉलिसी से क्या हुआ, सब लोग को लगा भाई चोरी नहीं करना है, करूंगा तो नेक्स्ट जन्म में मुझे गलत हो जाएगा, वो सब उनके माइंड में चलता है। थेफ्ट, क्राइम एंड अदर सच एक्टिविटी ऑलमोस्ट केम टू एंड, खत्म हो गई, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, क्राइम ही नहीं हो रहा है, कितना बड़ा फायदा होगा। वो सब पैसा आप अच्छी जगह पे लगा सकते हो अल्टीमेटली। पब्लिक वेलफेयर, प्रजा का अच्छा करना है, वेलफेयर करना है। विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड वॉर हैविंग कम टू एंड, खत्म, वॉर नहीं करना है। अशोका's धम्मा हेल्प ऑफिशियल टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर। तो जो चीज, जो पावर आप आर्मी में लगाते थे वो हो गया आपका उल्टा, अभी प्रजा की अच्छी के लिए लगा रहे हो वो पावर को, पैसे को। पब्लिक वर्क स्कीम, देखो पब्लिक की स्कीम, घर बनाओ, ओके, आर्मी डेवलप बिल्टअप करना है, टैंक लाना है। एक आपका फाइटर प्लेन की कॉस्ट होती है 100 करोड़ रुपया, एक फाइटर प्लेन, अंदाज बोल रहा हूँ शायद, हाँ उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 100 करोड़ रुपया फाइटर प्लेन में डालने से बेटर है 100 लोगों को या 200 लोगों को 50 लाख का घर बना के दे दो ना,
तो 200 लोग तो घर वाले हो जाएंगे एटलीस्ट, तो वैसा है सीन. ओके, दिस रिजल्टेड इन द प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ. तो इसके लिए कितना अच्छा, मतलब आई थिंक वी हैव टू फॉलो दिस, नॉट वी, द होल वर्ल्ड हैव टू फॉलो दिस.